میں برسوں سے پردیس میں مزدوری کر رہا تھا۔ ایک دن بیوی نے بتایا کہ ابو شدید بیمار ہیں، مگر اس نے علاج کے پیسے منگوا کر مجھے آنے سے روک دیا اور کہا میں سنبھال لوں گی۔ کچھ عرصے بعد اس نے ان کی وفات کی خبر دی۔ 6 ماہ بعد جب میں واپس لوٹا تو باپ کے آسان ثواب کے لیے غریبوں میں کھانا تقسیم کرنے گیا۔ وہاں ایک گلی میں نظر پڑی اور میرے ہوش اڑ گئے۔ پھٹے کپڑوں میں سوکھی روٹی کھاتا رہا۔ میرا نام سلیم ہے، پچھلے 12 سالوں سے میں سعودی عرب میں مزدوری کر رہا ہوں۔ پہلے تو دل بہت مچلتا تھا، گھر کے لیے، گاؤں کی مٹی کے لیے، امی کے ہاتھ کے کھانے اور ابو کے کھردرے مگر شفقت بھرے لمس کے لیے۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ انسان پتھر بن جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ دن کب رات میں اور رات کب دن میں بدل گئی۔ یہاں زندگی صرف 2 چیزوں کے گرد گھومتی ہے، کام اور نیند۔ بس میں صبح 7 بجے کام پر نکلتا، دوپہر میں تیز دھوپ میں اینٹیں اٹھاتا، شام کو پسینے سے شرابور واپس آتا، 1 کپ چائے پیتا، موبائل چارج پر لگاتا اور امی بیوی کو کال کرتا۔ یہی میرا دن تھا، یہی میری رات۔ میری بیوی نسرین، وہ کبھی زیادہ باتیں نہیں کرتی تھی۔ شروع میں تو بہت شوق سے کال کرتی، تصویریں بھیجتی، گاؤں کی خبریں دیتی، مگر پچھلے کچھ سالوں سے اس کی باتوں میں ایک اجنبیت آ گئی تھی، جیسے کچھ چھپا رہی ہو۔ میں نے کئی بار پوچھا، او نسرین سب ٹھیک تو ہے نا؟ تو وہ ہمیشہ ہنستے ہوئے کہتی، او ہاں سلیم، سب ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو۔ مگر اس دن جب اس کا فون آیا تو اس کی آواز میں ایک عجیب لرزش تھی۔ او سلیم، ابو بہت بیمار ہیں۔ میرے دل نے ایک لمحے کو دھڑکنا چھوڑ دیا۔ او کیا ہوا ابو کو؟ کب سے؟ میں نے جلدی سوالات داغے۔ وہ بولی، کافی دنوں سے کھانسی اور بخار تھا، ڈاکٹر کہتا ہے کہ شاید پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے، تم پیسے بھیج دو، میں علاج کروا لوں گی۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے بینک ٹرانسفر کیا، پورے 50,000۔ دل چاہتا تھا اگلی فلائٹ سے نکل جاؤں، مگر اس نے صاف منع کر دیا۔ تم یہاں آ کر کیا کرو گے؟ یہاں گرمی ہے، حالات بھی ٹھیک نہیں۔ میں دیکھ لوں گی، تم فکر نہ کرو، ابو ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس رات میں سو نہیں سکا، چھت کو دیکھتا رہا اور ذہن میں ابو کا چہرہ گھومتا رہا، وہی سفید داڑھی، سر پر ٹوپی اور وہ مسکراہٹ جو ہمیشہ میرے دل کو سکون دیتی تھی۔ 2 دن گزرے، پھر 4، پھر پورا ہفتہ۔ نسرین کبھی کبھار پیغام بھیج دیتی، ابو بہتر ہے، دوا چل رہی ہے۔ میں تسلی کر لیتا۔ پھر ایک رات میرے موبائل کی گھنٹی بجی، کال وہی تھی نسرین کی۔ میں نے مسکراتے ہوئے فون اٹھایا، مگر اگلے لمحے جو سنا وہ میری زندگی کی سب سے بھیانک خبر تھی۔ او سلیم، ابو نہیں رہے۔ میرے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا، دنیا جیسے تھم گئی۔ میرے آس پاس شور تھا مگر میں بہرا ہو گیا تھا۔ وہ نہیں نسرین، ایسا نہیں ہو سکتا، کل ہی تو بہتر تھے۔ میں چیخا، وہ بس دھیمی آواز میں بولی، انہوں نے آخری وقت میں تمہارا نام لیا، بہت یاد کر رہے تھے، میں نے کفن دفن سب کر دیا، تم فکر نہ کرو۔ میں دیوار سے لگا اور پہلی بار اپنے وجود کو خالی محسوس کیا۔ وہ ابو جو ہر عید پر میرا انتظار کرتے تھے اب زمین کے نیچے جا چکے تھے اور میں ہزاروں میل دور صرف ایک آواز بن کر رہ گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، میں نے اپنے اندر کے خلا کو کام میں دفن کرنے کی کوشش کی، مگر ابو کی یاد بار بار دل پر دستک دیتی۔ ہر شام جب مزدوری ختم ہوتی تو میں بیٹھ کر ان کی تصویریں دیکھتا۔ نسرین کی باتوں میں اب عجیب ٹھہراؤ آ گیا تھا، وہ نہ اداسی دکھاتی نہ تسلی دیتی، بس یوں لگتا جیسے ایک فرض پورا کر رہی ہو۔ میں نے کئی بار کہا، ای نسرین، مجھے لگتا ہے کچھ تم چھپا رہی ہو، تو وہ ہمیشہ ایک ہی جواب دیتی، او سلیم، تمہارا وہم ہے، سب ٹھیک ہے۔ 6 ماہ گزر گئے، میرا اقامہ بھی ختم ہونے والا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا اب واپس جاؤں گا، ابو کے 40واں تو نہیں مگر آسان ثواب کے لیے کچھ کروں گا۔ واپسی کا سفر لمبا تھا۔ جب جہاز لینڈ ہوا تو دل عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا، گاؤں کی ہوا میں مٹی، دھوپ اور بچپن کی یادوں کی خوشبو ملی ہوئی تھی۔ گھر پہنچا تو نسرین دروازے پر تھی، چہرے پر مصنوعی سا سکون۔ میں نے اس کے ہاتھ سے بچہ لیا، ابو کی کرسی دیکھی، خالی تھی۔ میں اندر گیا، ان کا کمرہ کھولا، ہر چیز ویسی ہی تھی جیسے چھوڑ کر گیا تھا، پرانا بستر، چھڑی، قرآن پاک میز پر۔ میں نے آنکھیں بند کی اور آنسو بہہ گئے۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ ابو کے آسان ثواب کے لیے گاؤں کے غریبوں میں کھانا تقسیم کروں گا۔ نسرین نے فہرست بنائی، میں دیگیں پکوانے بازار گیا، سب کچھ انتظام سے ہوا، لوگ آتے دعا دیتے اور جاتے۔ پھر میں نے خود ہاتھوں سے کھانا تقسیم کرنا شروع کیا، ایک ایک گلی میں جا کر ضرورت مندوں کو کھانا دیا۔ سب ٹھیک چل رہا تھا،
जब तक कि मैं चौपाल के पीछे वाली तंगिल्ली में नहीं पहुंच गया। वहां चंद बच्चे खेल रहे थे और एक बूढ़ी औरत सहन में कपड़े धो रही थी। मैंने इसे आवाज दी, बीबी खाना ले लीजिए, आसान सवाब के लिए है। इसने सर उठाया और जैसे ही मेरी तरफ देखा, इसकी आंखों में एक हैरत झलकी। ओ सलीम, ताव वापस आ गया? मैंने सर हिलाया। हाँ अबू, के आसान सवाब के लिए आया हूं। वो एक लम्हे को खामोश रही, फिर नजरें झुका ले। मैंने ज्यादा तवज्जो ना दी, बस आगे बढ़ गया। मगर फिर मैंने देखा गिल्ली के कोने पर एक झोंपड़ी थी। बाहर एक बोसीदा चटाई बिछी हुई थी और एक बूढ़ा आदमी फटे कपड़ों में बैठा सूखी रोटी खा रहा था। सूरज की रोशनी में इसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। मैं ठिठक गया, मेरे कदम खुद बखुद रुक गए। मेरे अंदर कुछ टूटा, कुछ पहचान सा जागा। वो चेहरा, वो सफेद दाढ़ी, वही झुर्रियां। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं चंद कदम आगे बढ़ा, दिल धड़क रहा था, आंखें धुंधला रही थीं। मैंने धीमी आवाज में कहा, अबू। बूढ़े ने सर उठाया। इसकी आंखों में हैरत, दुख और एक मानूस चमक थी। फिर इसने रोटी नीचे रखी और कपकपाती आवाज में बोला, ओ सलीम, ताव आ गया? मेरी दुनिया जैसे एक लम्हे में उलट गई। मैं पीछे हटा, सांस उखड़ गई। मेरे लबों से बस एक जुमला निकला, लेकिन आप तो मर चुके थे। मैं हैरान खड़ा था, मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए हों। सामने वही चेहरा था जिसे मैं कब्र में तसव्वुर करके 6 महीने से सो नहीं सका था। मेरा हल्क खुश्क था। अबू, अब मैं बमुश्किल बोल पाया। वो बूढ़ा शख्स जिसके चेहरे पर गर्द जिमी हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता उठा। उसकी आंखों के गिर्द सूजन थी, हाथ कपकपाते थे, मगर आवाज में एक मानूस नरमी थी, ओ सलीम, तो वापस आ गया? मैं जानता था तो जरूर आएगा। मेरे दिमाग में धमाके हो रहे थे। मैंने जल्दी से आसपास देखा, गिल्ली सुनसान थी, सिर्फ 2 बच्चे खेल रहे थे। मेरे मुंह से फिसल गया, ओ ये सब किया है? नसरीन ने कहा था अब मर गए, कफन दफनाया भी गया, ये सब किया मतलब है? वो बूढ़ा धीरे से बोला, बेटा पहले मुझे पानी दे, फिर बैठ जा, सब बताता हूं। मैं दौड़कर पास वाले नलके से पानी भरा, इसके सामने रखी पुरानी लोहे की प्याली में डाला। इसने कपकपाते हाथों से प्याली उठाई, 2 घूंट पिए और सांस सीधी की। फिर आहिस्ता से बोला, सलीम, मरने का ढोंग नसरीन ने नहीं, तेरे माँ बाप के रिश्तेदारों ने रचाया। मैं सुनकर पत्थर का हो गया। क्या ढोंग? किसने? क्यों? मेरी आवाज बुलंद हो गई। वो आहिस्ता बोला, बेटा नसरीन, वो अकेली थी, मैं बीमार था। वो कहती थी इलाज महंगा है, मगर मैंने कहा अल्लाह बड़ा है। लेकिन तुम्हारी खाला के बेटे ने इसे बहकाया, कहा सलीम को बिला वजह मत बुलाओ, वो आ गया तो तुम्हें हाथ से निकलने नहीं देगा। इसने कहा इलाज के बहाने पैसे मंगवाओ और फिर ये खबर फैलाओ कि मैं मर गया। मेरे कानों में शोर गूंजने लगा, आप कहना चाहते हैं? नसरीन को सब पता था, इसने भी झूठ बोला। मैं कपकपाती आवाज में बोला, अबू ने नजरें झुका ले, पता नहीं बेटा, मैं इतना जानता हूं कि इस दिन जब गांव में मेरी मौत की खबर फैली, मैं अभी जिंदा था। मुझे इस खालाजाद के घर भेज दिया गया, कहा कि शहर ले जाएंगे इलाज के लिए, मगर वहां जाकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। 2 दिन बाद मैंने उनकी बातें सुन ले। वो कह रहा था अब वो मर गया, मान लो, सलीम को वापस ना बुलाओ। मैंने भागने की कोशिश की मगर मार खा ली। फिर एक रात मौका मिला तो निकल आया। मेरे होंठ खुश्क हो गए। फिर अब कहाँ गए? यही गिल्ली मिली बेटा। मैंने किसी से नहीं कहा कि मैं जिंदा हूं, शर्म आती थी। तेरी अम्मा के बाद तो ही सहारा था। मैं नहीं चाहता था कि तेरी जिंदगी बर्बाद हो, मगर अब अल्लाह ने तुझे सामने ला दिया। मैं जमीन पर बैठ गया, दिल में आग लग चुकी थी। मेरे अंदर एक तूफान था, गुस्से, दुख और धोखे का। मेरे हाथ मुट्ठियों में बंद हो गए। मैंने आसमान की तरफ देखा, आंखों में आंसू उबलने लगे। नसरीन, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं अबू को सहारा देकर झोंपड़ी के अंदर ले गया। अंदर कुछ नहीं था, एक पुराना बिस्तर, चूल्हा और एक मिट्टी का प्याला। मैंने दिल में तय कर लिया कि अब सब सामने आएगा। मैंने अबू से कहा, आप यहां रहें, मैं अभी आता हूं। मैं घर की तरफ भागा। नसरीन सहन में देगों के बर्तन धो रही थी। इसने मुझे देखा तो चौंकी, अरे कहाँ गए थे? लोग पूछ रहे थे। मैं सीधा उसके सामने जा खड़ा हुआ, मेरी आंखों में खून उतर आया था। ओ नसरीन, तुमने मुझसे झूठ बोला। वो चौंकी, क्या मतलब? कौन सा झूठ?
میرے ابو زندہ ہیں، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں چیخا، نسرین کا رنگ اڑ گیا، اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹ کر زمین پر گرا۔ چند لمحے وہ حیران کھڑی رہی، پھر آہستہ سے بولی، تمہیں کس نے بتایا؟ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے خود دیکھا۔ میں نے غصے میں کہا، اب بولو، سچ کیا ہے؟ کس نے کیا؟ اور تم نے کیوں ساتھ دیا؟ نسرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلیم میں مجبور تھی۔ تمہیں نہیں معلوم، تمہارے خالہ زاد نعیم نے مجھے دھمکایا، کہا اگر میں تمہیں بلاؤں گی تو وہ میرا جینا حرام کر دے گا۔ اس نے ابو کو لے جا کر چھپا دیا۔ میں نے ان کے لیے علاج کے پیسے مانگے، مگر وہ پیسے اس نے لے لیے۔ جب میں نے انکار کیا تو اس نے کہا، اگر تم کسی کو کچھ بتاؤ گی تو تمہیں بدنام کر دوں گا۔ میں اکیلی تھی سلیم، میں ڈر گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اور تم نے میرا باپ مروا دیا نسرین، میں گر جا۔ وہ رونے لگی۔ میں نے کسی کو نہیں مارا سلیم، میں نے صرف خاموشی اختیار کی۔ میں نے دیوار پر مکہ مارا۔ خاموشی بھی گناہ ہے نسرین، تم نے میرے ابو کو دفنایا نہیں، تم نے میری انسانیت دفنائی ہے۔ رات ہو گئی، میں جھونپڑی واپس آیا۔ ابو سو رہے تھے، چہرے پر سکون سا تھا۔ میں ان کے قریب بیٹھ گیا، میں نے ان کے ہاتھ پکڑے اور دل میں سوچا میں سب ٹھیک کروں گا۔ جو دھوکا ہوا اس کا حساب لوں گا۔ اگلی صبح میں سیدھا گاؤں کے پنچایت کے پاس گیا، سارے بزرگ بیٹھے تھے۔ میں نے سب کے سامنے کہا، میرا باپ زندہ ہے، اس کی موت جھوٹ تھی، اور اس جھوٹ کے پیچھے نعیم کا ہاتھ ہے۔ لوگوں میں سرگوشیاں ہونے لگے۔ نعیم وہیں موجود تھا، وہ ہنسا، ثبوت ہے تمہارے پاس؟ بس خواب دیکھا ہے، میں نے کہا، ہاں ثبوت ہے، خود ابو۔ میں نے سب کو لے کر جھونپڑی کی طرف بڑھا۔ میرے قدموں میں عزم تھا، دل کہہ رہا تھا آج سچ سامنے آئے گا۔ لیکن جب جھونپڑی کے قریب پہنچا، میری سانس رک گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر کچھ نہیں تھا، ابو غائب تھے۔ دروازہ کھلا تھا، ہوا کہ جھونکے سے پرانی چٹائی ہل رہی تھی۔ میں نے اندر قدم رکھا، ابو؟ آواز نکلی مگر جواب نہیں آیا۔ جھونپڑی خالی تھی، بستر الٹا پڑا تھا، پیالی زمین پر گری ہوئی تھی، اور دروازے کے باہر مٹی پر واضح گھسٹنے کے نشان تھے، جیسے کسی کو زبردستی گھسیٹ کر لے جایا گیا ہو۔ میرے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی، میں دوڑتا ہوا باہر نکلا، آس پاس دیکھا، کچھ عورتیں دور سے مجھے دیکھ رہی تھیں، مگر کوئی کچھ کہہ نہیں رہا تھا۔ میں نے ایک سے پوچھا، بی بی یہاں کوئی آیا تھا؟ وہ نظریں چراتے ہوئے بولی، بیٹا صبح ایک گاڑی آئی تھی، سفید رنگ کی، 2 آدمی اترے، کچھ دیر بعد گئے، بس کسی نے پہچانا؟ نہیں بیٹا، نمبر یاد نہیں۔ میں نے سر پکڑ لیا، دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ ابو دوبارہ گم، اور اس بار میں چپ نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میں تیز قدموں سے واپس گاؤں کے چوک کی طرف بڑھا۔ نعیم ابھی بھی وہیں بیٹھا تھا، چائے پی رہا تھا، چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ۔ میں نے اس کے کالر سے پکڑ لیا، کہاں لے گیا میرے باپ کو کمینے؟ وہ چونکا، پھر کہا لگا کر بولا، پاگل ہو گیا ہے کیا؟ میں نے نہیں دیکھا تمہارے کسی باپ کو۔ میں نے گھونسا مارا، لوگ بیچ میں پڑ گئے، کسی نے پکڑ کر الگ کیا۔ نعیم نے کہا لگاتے ہوئے کہا، جھوٹے خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا سلیم، کبھی کبھی مرے ہوئے لوگوں کو زندہ سمجھ لینا بھی بیماری ہوتی ہے، علاج کرا لے اپنا۔ میرے اندر سے چیخ نکلی، میں نے خود دیکھا ہے اسے زندہ۔ وہ میرے ہاتھ پکڑ کر بولا، سلیم تو آ گیا۔ نعیم نے کندھے اچکائے اور چلا گیا۔ لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے، کوئی سر ہلا کر چپ چاپ گھر چلا گیا۔ میں اکیلا رہ گیا گاؤں کی گرد آلود سڑک پر، اپنے ہی سچ کے ساتھ۔ رات کو میں گھر آیا تو نسرین دروازے پر تھی، آنکھوں میں خوف تھا۔ سلیم، کچھ پتہ چلا؟ میں نے غصے میں کہا، ہاں پتہ چلا، تمہارا رشتہ دار نعیم دانیہ کا سب سے بڑا جھوٹا اور ظالم انسان ہے، اور تم نے برسوں اس کا ساتھ دیا۔ نسرین کے آنسو ٹپکنے لگے۔ میں نے کچھ نہیں کیا سلیم، میں تو خود قید تھی۔ قید؟ میں چونکا۔ ہاں وہ دھیرے سے بولی، اب تمہیں سب سچ جاننا ہوگا۔ نعیم صرف لالچی نہیں، خطرناک بھی ہے۔ اس نے تمہارے ابو کے ساتھ وہ کیا جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ نسرین نے آہستہ سے کہا، سلیم، تمہارے ابو نے زمین اپنے نام سے تیرے نام منتقل کر دی تھی، لیکن نعیم کو وہ زمین چاہیے تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ تم کبھی واپس نہ آؤ۔ اس نے تمہارے ابو کو اغوا کر لیا۔ میں نے روکا تو دھمکایا، اور پھر
अबू को बीमार जाहिर करके सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। ये मेरे कान सुनकर सुनाने लगे, यानी ये सब जमीन के लिए था। हाँ, और तुम चुप रहे। नसरीन रो पड़ी। मैंने बोलने की कोशिश की सलीम, मगर इसने मेरी तस्वीरें खींचकर ब्लैकमेल किया। कहा अगर जुबान खोली तो बदनाम कर दूंगा। मैं औरत हूं, क्या करती। मेरे अंदर का गुस्सा धुएं में बदलने लगा। अब बस, अब ये सब खत्म होगा। मैंने फैसला कर लिया, कल सुबह पुलिस जाऊंगा। अगली सुबह में थाने पहुंचा। हवालदार ने सारी बात सुनी और तंजिया अंदाज में बोला, 6 महीने बाद आए हो और अब कहते हो तुम्हारे बाप को अगवा किया गया। जनाजा भी हुआ था ना, कब्र भी बनी थी। कब्रें झूठ भी हो सकती हैं, मैंने कहा। तो फिर लाश? वो हंसा। मैंने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। ये लाश नहीं, जिंदा सबूत है, मेरा बाप। मगर वो फिर से गायब हो गया। हवालदार ने फाइल बंद की। ओ देखो सलीम, इस तरह के केसेस रोज आते हैं। पहले कोई जिंदा नजर आता है, फिर लापता। हो सकता है बूढ़ा किसी और गांव चला गया हो। तुम्हें सबूत चाहिए। मैं बेबसी से बाहर आ गया। गांव की हुआ अचानक बोझल लगने लगी। रात गुजर गई मगर नींद ना आई। मेरे दिमाग में एक ही ख्याल गूंज रहा था, अबू कहाँ गए। मैं बार बार वो झोंपड़ी, वो निशान, वो गाड़ी याद कर रहा था। फिर अचानक एक बात ज़हन में आई। गांव की मस्जिद के पीछे एक पुराना कुनवा था। वो जगह वीरान रहती थी, मगर नईम के लोग अक्सर वहां आते जाते थे। दिल में एक अनजानी हलचल हुई। मैंने टार्च उठाई और अकेला निकल पड़ा। रात का वक्त, गांव सन्नाटा। कुनवे के करीब पहुंचा तो जमीन पर गाड़ी के टायर के निशान थे। मैंने झक कर देखा, नमी अभी बाकी थी, मतलब गाड़ी ज्यादा देर पहले नहीं गई थी। मैंने कुनवे के पास रोशनी डाली और अचानक एक कपड़ा नजर आया। एक पुराना चादर का टुकड़ा, वही जो अबू ओढ़ा करते थे। मेरी सांस रुक गई। मैंने रोशनी नीचे डाली। पानी गहरा था मगर नीचे कोई साया सा नजर आ रहा था। मैं चीखा, अबू। आवाज गूंजी मगर जवाब नहीं आया। मैंने फौरन रस्सी लाई, कुनवे में उतारी। कुछ देर बाद नीचे से हल्की सी आहट आई, जैसे कोई सांस ले रहा हो। मैंने पूरी ताकत से रस्सी खींची। पानी के छींटे उड़ने लगे। चंद लम्हे बाद मैंने देखा एक बूढ़ा वजूद ऊपर आ रहा था। मेरे हाथ कांपने लगे। जब वो ऊपर पहुंचा तो मैंने इसे पहचान लिया। वो अबू थे, जिंदा मगर नीम बेहोश, उनका चेहरा जख्मी, कपड़े भीगे हुए। मैंने उन्हें खींचकर किनारे पर लुटाया। ओ अबू, आंखें खोलो। उन्होंने आंखें झपकी। सांस टूटी फूटी थी। उन्होंने आहिस्ता से कहा, ई सलीम। नईम, वो खत्म नहीं हुआ। नसरीन खतरे में है। और फिर उनकी आंखें बंद हो गईं। मैंने उन्हें कंधे पर उठाया, गांव के हकीम के पास दौड़ गया। हकीम ने मरहम पट्टी की दवा दी और बोला, खुदा का शुक्र है वक्त पर ले आए, वरना सांस रुक जाती। मैं रात भर उनके पास बैठा रहा। दिल में एक ही अज़्म था, अब नईम का खेल खत्म होगा। मगर अगली सुबह जब मैं घर पहुंचा, दरवाज़ा खुला था। नसरीन गायब, और मेज पर एक पर्ची रखी थी। इस पर लिखा था, अगर सच सामने लाने की कोशिश की तो तुम दोनों को हमेशा के लिए सच बोलने से महरूम कर दूंगा। नईम। मेरे हाथ से पर्ची छूट गई। मैंने आसमान की तरफ देखा। दिल से एक सर्द आह निकली। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। मेरे हाथ में वो पर्ची थी, नईम का लिखा हुआ धमकी भरा नोट। मेरी उंगलियां कांप रही थीं, दिल तेजी से धड़क रहा था और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, नसरीन कहाँ गई। मैंने पूरे घर की तलाशी ली। कपड़े, बर्तन, बिस्तर सब अपनी जगह पर थे, सिर्फ नसरीन का दोपट्टा गायब था। वही नीला दोपट्टा जो वो अक्सर खौफ में अपने कंधों पर लपेट लेती थी। कमरे की दीवार पर कील पर कुछ कागज फंसा था। मैंने खींचा, देखा तो नईम का लेन देन का रजिस्टर निकला। शायद नसरीन जाते जाते ये छोड़ गई थी। मैंने सफ़े पलटे, दर्जनों नाम, जमीनों के कागज, और दरमियान में लिखा था, सलीम के नाम वाली जमीन अबूरी कब्जा। मेरी आंखों में खून उतर आया। यानी नईम ने बाकायदा जाली दस्तावेजात बनाकर जमीन अपने नाम मुंतकिल की थी और इस राज को छुपाने के लिए अबू को मारने की कोशिश की। मैंने रजिस्टर जेब में रखा और बाहर निकल गया। मुझे अब 2 चीजों का पता लगाना था, नसरीन कहाँ है और नईम कहाँ छुपा है। गांव के किनारे एक पुराना मकान था जो कभी मेरे चचा का हुआ करता था, अब वो खाली पड़ा था। मगर गांव के कुछ लोग कहते थे कि नईम कभी कभार वहां आता है। मैंने टार्च संभाली और रात के अंधेरे में वहां पहुंच गया। दरवाजा बंद नहीं था, बस आधा खुला, अंदर सन्नाटा। मैंने कदम रखा, फर्श चरचराया। कमरे में मध्यम सी रोशनी थी। एक कोने में कुछ पड़ा था, शायद कपड़ा।
कोई शख्स में आहिस्ता से करीब गया। नसरीन वो थी, हाथ बंधे हुए, मुंह पर कपड़ा। मेरा दिल उछल गया। मैंने तेजी से कपड़ा खोला। इसने कमजोर आवाज में कहा, ई सलीम, वो उधर ही है, बाहर ना जाना। मैंने इसे सहारा दिया, उड्रो मत, अब मैं हूं। लेकिन तभी पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। मैं पलटा, नईम खड़ा था, हाथ में बंदूक। हीरो बनने आया है वो, तंजिया हंसा। छोड़ दे इसे नईम, मैंने चीख कर कहा। वो आगे बढ़ा, छोड़ दूं? इस औरत ने मेरे खिलाफ सबूत चराए और ताव चाहता है मैं छोड़ दूं? मैंने कहा, ये सब खत्म हो चुका है। मैंने तुम्हारा रजिस्टर देख लिया है, तुम्हारी चोरी, तुम्हारा झूठ, सब सबूत मेरे पास हैं। वो लम्हा भर के लिए चौंका, मगर फिर बोला, ऊ सबूत किसके काम आएंगे? तुम दोनों यहां से जिंदा नहीं जाओगे। नसरीन ने कपकपाते लबों से कहा, ऊ नईम, खुदा के लिए ये जुल्म मत कर। सलीम बेकसूर है। वो हंसा, कसूरवार वो है जो रास्ते में आया, और तुम दोनों आ गए। इसने बंदूक सीधी की। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। एक लम्हे में सब धुंधला गया। अबू, नसरीन, जमीन, बचपन, वो अय्याम जब सब ठीक था। मैंने दिल में दुआ की, ओ खुदा मुझे मौका दे, मैं इंसाफ चाहता हूं। और जैसे ही नईम ने फायर का इरादा किया, दरवाजा धड़ाम से खुला। पुलिस अंदर दाखिल हुई। हवालदार चीखा, नईम, बंदूक नीचे रख। नईम चौंका, पीछे हटा। मैंने मौका देखा, आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। बंदूक छन गई और वो फर्श पर गिर पड़ा। हवालदार ने हथकड़ी लगाई। मैं हाँप रहा था। नसरीन रो रही थी। मैंने इसकी तरफ देखा, वो जमीन पर बैठ गई, आंखों से आंसू बहने लगे। पुलिस वाले अबू को भी वहां ले आए थे। उनकी हालत बेहतर थी। उन्होंने नईम की तरफ देखा और बस इतना कहा, बेटा, जुल्म देर तक नहीं चलता। नईम खामोश रहा, इसकी आंखों में शिकस्त थी। चंद दिन बाद सब कुछ बदल चुका था। नईम जेल जा चुका था। रजिस्टर के सबूतों ने केस मजबूत कर दिया था। अबू आहिस्ता आहिस्ता संभल रहे थे। गांव वाले जो कल तक शक में थे, अब शर्मिंदा नजरों से मेरे पास आते थे। और नसरीन, वो अक्सर खामोश रहती थी। इसके चेहरे पर नदामत थी, मगर आंखों में सुकून भी, शायद इसलिए कि आखिरकार सच सामने आ गया था। मैंने एक दिन इससे कहा, ये नसरीन, मैं तुम्हें इल्जाम नहीं देता, बस ये कहानी खत्म हो जाए। वो आहिस्ता से बोली, कहानियां कभी खत्म नहीं होती सलीम, बस किरदार बदल जाते हैं। मैं मुस्कुराया, हाँ, मगर इस बार हम अपने अंजाम के मालिक खुद होंगे। रात को मैं अबू के साथ बैठा था। वो तस्बीह पढ़ रहे थे। मैंने पूछा, अबू, आपने इतना सब कुछ बर्दाश्त किया, कभी बद्दुआ नहीं दी? उन्होंने मुस्करा कर कहा, बेटा, बद्दुआ जुल्म को नहीं मिटाती। सच मिटा दे तो फिर इंसाफ कैसे होगा? हमने सच दुखा दिया, अब अल्लाह इंसाफ करेगा। मैंने उनके हाथ चूम लिए। बाहर गांव की हुआ हल्की सी सर्द थी। दूर कहीं मुअज्जिन की अजान गूंजी। मेरे दिल में सुकून उतरा। बरसों बाद मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, अबू जिंदा हैं, सच जिंदा है, बाकी सब फानी। जिंदगी कभी एक जगह नहीं ठहरती। जो लम्हा आज आग जैसा जलता है, कल वो राख बनकर हुआ में बखर जाता है। नईम के जेल जाने के बाद गांव में एक अजीब खामोशी छा गई थी। लोगों के चेहरों से नफरत नहीं, शर्मिंदगी झलकती थी। कोई आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करता था। शायद हर किसी के दिल में कहीं न कहीं एहसास जुर्म था कि वो सब कुछ देखकर भी खामोश रहे। अबू अब काफी बेहतर हो गए थे। उनके जख्म मुंदमिल हो रहे थे, मगर चेहरे पर वक्त के निशान बाकी थे। कभी कभी वो बैठे बैठे सोच में गुम हो जाते, फिर धीरे से कहते, बेटा, इंसान का असल दुश्मन बाहर नहीं, अपने अंदर होता है। जब दिल कमजोर हो जाए तो जालिम ताकतवर बन जाता है। मैं उनके पास बैठकर बहुत कुछ सीखता रहा। मुझे लगता था कि मैं बरसों बाद अपनी असल पहचान वापस पा रहा हूं। नसरीन अक्सर सह में बैठी रहती, बच्चे के साथ खेलती, कभी कभी खामोशी से आंसू बहा लेती। मैं जानता था कि इसके दिल पर जो बोझ है वो किसी सजा से कम नहीं। एक दिन मैंने इसके पास जाकर कहा, ये नसरीन, हम सब ने गलतियां की, तुमने भी, मैंने भी, मगर अब वक्त है कि सब माजी को दफन कर दें। वो चौंकी, फिर धीरे से बोली, क्या वाकई दफन किया जा सकता है? मैंने मुस्कुरा कर कहा, जब कब्र पर फूल उगाते हैं तो दुख भी मिट्टी हो जाते हैं। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। शायद बरसों बाद पहली बार चंद दिन बाद गांव के इमाम साहिब आए। उन्होंने कहा, सलीम, तुम्हारा सब्र और सच्चाई मिसाल है। तुमने जिस तरह अपने वालिद को इंसाफ दिलाया, लोग याद रखेंगे। मैंने झिझकते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया इमाम साहिब, बस खामोशी के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा, यही तो सबसे बड़ा काम होता है, सच कहने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। अबू ने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा, देखा बेटा, मैं कहता था ना, सच वक्त मांगता है मगर हारता नहीं।
कुछ महीने गुजर गए, मैंने ज़मीन वापस अपने नाम करवा ली। अबू की ख्वाहिश थी कि इसी ज़मीन पर एक छोटा सा मदरसा बनाया जाए गरीब बच्चों के लिए। मैंने उनकी बात दिल से मान ली। लगता था जैसे वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में सुकून ढूंढ रहे हों। एक दिन वो मेरे पास आए, बेटा अब मैं चाहता हूं तुम वापस परदेस ना जाओ, यहीं रहो, यही तुम्हारा घर है। मैंने उनके कदमों में बैठकर कहा, अबू मैंने परदेस में बहुत कुछ खोया है, अब मेरा वतन ही मेरी दुनिया है। उन्होंने मेरा सर थपथपाया, वो अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, अब मेरी आंखों ने सब देख लिया। कुछ दिन बाद एक सुबह फजर के वक्त अबू खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस बार वाकई, लेकिन इस बार उनकी मौत में सुकून था, दुख नहीं, क्योंकि अब वो कब्र में नहीं मेरे दिल में जिंदा थे। मैंने खुद अपने हाथों से उनका जनाजा पढ़ाया और जब मिट्टी डाली तो दिल में एक अहद किया, अब कभी किसी के सच को दफन नहीं होने दूंगा। गांव के लोग जमा थे, नसरीन मेरे साथ थी, आंखों में आंसू मगर चेहरे पर इत्मीनान। मैंने कब्र की मिट्टी बराबर की, फिर आसमान की तरफ देखा। हुआ में वही खुशबू थी जैसे अबू की दुआ मेरे चारों तरफ फैल गई हो। मैंने धीरे से कहा, अबू आप चले गए मगर आपका सच मेरे अंदर जिंदा है। अब ये कहानी खत्म नहीं, ये तो मेरी नई जिंदगी की शुरुआत है। कुछ महीने बाद मैंने गांव के बच्चों के लिए मदरसा खोल दिया। इसका नाम रखा ईदी रालसिद, यानी ऊ सच का घर। रोज सुबह में दरवाजे पर खड़ा होकर बच्चों को आते देखता, उनकी हंसी, उनकी मासूमियत सब मेरे लिए जिंदगी बन गई थी। नसरीन भी साथ देने लगी। अब वो वही नसरीन नहीं थी जो खौफ में जीती थी, अब वो मजबूत थी, मुतमईन थी। हमने माजी को दफन कर दिया मगर सबक अपने दिल में जिंदा रखा। शाम के वक्त में अक्सर सहन में बैठकर अबू का तस्बीह वाला डब्बा हाथ में लेता। जब भी तस्बीह के दाने गिनता दिल में एक दुआ निकलती, ए रब अगर किसी के हिस्से में धोखा आए तो उसे सच दुखाने की ताकत दे। सूरज ढलता, अजान की आवाज आती और मैं दिल में मुस्कुराता, क्योंकि अब मुझे यकीन हो चुका था कि सच छप नहीं सकता। जिंदगी ने मुझे सिखाया कि सच बोलने वाले कम होते हैं, मगर जब वो बोलते हैं तो झूठ के ऐवान हल जाते हैं। मैं सलीम, एक मजदूर, बस इतना जानता हूं, सच के लिए जीना किसी भी मजदूरी से ज्यादा कीमती काम है। आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।